Good morning, student. This video is mainly meant for a 10th class student who are studying in CBSE schools. So today's topic is excretion. As we know that excretion is the removal of the waste material. देखिए, lot of metabolic activities, metabolic reactions, life processes, they are going on in the body of the living organism. So each and every reaction of the body lead to the production of some sort of the garbage that is not required by the body. So वो जो वेस्ट मटेरियल है जिसकी ज़रूरत शरीर को नहीं है, that is removed from the body. Could you give some example of the waste material in your body? Yes, आप सही सोच रहे हैं. एक्चुअली आपने देखा होगा हम सांस लेते हैं, वी रेस्पायर एंड वी प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. वी टेक ऑक्सीजन and we produce carbon dioxide because carbon dioxide is a waste material. It is not required by the body. The material which is not required, that goes outside of the body. आपने देखा होगा, you get sweats, you have oil glands in your skin. आपकी स्किन में कई तरह का ऑयल की प्रोडक्शन होती है, स्वेट की प्रोडक्शन होती है, कई तरह के सॉल्ट्स बॉडी के बाहर निकलते हैं, कान के अंदर का वैक्स निकलता है, नोज़ में म्यूकस पैदा होता है. सो दिस इज द वेस्ट मटेरियल. ठीक है. सो दैट excretion is the process by which the waste product produced during metabolic activity is removed from the body. See, now on the basis of organization, body organization, you know that there are cellular level organization, tissue level organization, organ level organization, and on the basis of organization we can divide the organism generally into unicellular and multicellular one. So what happened in case of unicellular organism like bacteria, amoeba, paramecium? So here the waste material are generally, because this is a single cell, एक सिंगल सेल होने के नाते इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी. So because single cell is there and it is completely in touch with the environment, so it will remove the waste with the help of the simple processes like diffusion or the osmosis. ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू जो है ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकता है. in multicellular organism like we human beings or the plant, because we are having the complex bodies, complex structures, so we have organ level of organizations, different types of organs in case of human beings are there for the different type of the metabolic activity or the to functioning for the proper functioning of the body. तो जब एक्सक्रीशन की बात करते हैं हम लोग, तो in case of plant as well as in case of animals, there are different types of system available. Today we will deal with the excretion in case of the human beings. So dear student, you can see in the above diagram that there are a pair of kidneys are there. We have a pair of kidneys basically. देखो excretion जो हो रहा है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, carbon dioxide is also removed, water is also removed, salts are also removed, wax is also removed. But when we study about human excretory system, actually what is the main waste, major waste that is produced in our body? So that you are right, one is the carbon dioxide and one is the नाइट्रोजिनस वेस्ट. देखो हमारी बॉडी में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है, एंड दैट प्रोटीन actually when the waste from the protein occur in the form of the ammonia, that is converted into the urea. वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है by the liver. Now this urea, because again ammonia is also toxic, it is converted into the urea. Urea is also toxic, so there is a need to remove the urea. इसमें यूरिया को हमें क्या करना है, remove करना है. So in our body there is a system that is called as the human excretory system. There is a system which consists of a pair of kidney, which filters our blood, जो हमारे खून को क्या करती है, फिल्टर करती है. तो अगर आप देखें यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, there is a bean shaped kidney, there is a pair of bean shaped kidney, and from these kidney ये येलो कलर की एक डक्ट देख रहे हो, that is called as a ureter. Actually what happened, the blood that enter inside the kidney, that is filtered inside the kidney, urea is excreted, and this urea passes through this ureter to the
यूरिनरी ब्लैडर. सो यू कैन सी हियर दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. तो जो भी यूरिन आपका किडनी में बनेगा फ्रॉम द यूरेटर it will pass into the urinary bladder, and from urinary bladder we can remove that urea outside the body. So this is the internal structure given here, that there are different layers of the kidneys. See, ठीक है. तो अगर हम बात करें तो देर इज़ ए कॉर्टेक्स रीजन. कॉर्टेक्स रीजन आ गया जनरली जो अपर रीजन है, मेडुला रीजन जहाँ पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है. तो बेसिकली अगर हम बात करें ये जो किडनी के अंदर बेसिक इनसाइड द किडनी व्हाट इज एक्चुअली एक्सक्रीटरी यूनिट की देखो किडनी तो एक ऑर्गन आ गया. ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ different types of cells or different types of tissues. So basically if you talk about this organ, actually the main the part of the kidney actually that help in the excretion, that is the nephrons. तो वो जो cell, particular cell, you can say that what is the functional unit of this kidney, कि किडनी काम करती है तो इसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द किडनी एक्चुअली हेल्प इन द एक्सक्रीशन. सो दैट इज द नेफ्रॉन. तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, नेफ्रॉन आता है. So nephron is the main structure basically that help in the excretion process in case of the human being. जो blood की जो filtration होती है किडनी के अंदर, that is done by the nephrons. So nephron की अगर हम बात करें dear student, ये जो nephrons है basically, nephrons can be divided into the 5 parts. Generally अगर हम देखें, this is the picture in front of you, इसको हम 5 पार्ट्स में जो वो डिफाइन कर सकते हैं. अगर आप ये देखिए दिस एरिया, डियर स्टूडेंट, दिस एरिया इज कॉल्ड एज दी, हाँ जी क्या बोलेंगे इस पूरे एरिया को, इफ यू जस्ट सी हियर कप लाइक स्ट्रक्चर इज देयर. ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड एज दी बाउमन कैप्सूल. सो दिस इज दी फर्स्ट पार्ट. ये बाउमन कैप्सूल जो है दिस इज दी फर्स्ट पार्ट. ठीक है. ये जो बाउमन कैप्सूल है अगर आप इसके अंदर देखें, देयर आर रेड कलर आर्टरीज आर देयर, बंच ऑफ कैपिलरी लाई इनसाइड दिस बाउमन कैप्सूल. एक्चुअली होता क्या है, जो ब्लड वेसल आपकी जो आर्टरी आती है जो दैट एंटर इनसाइड द किडनी, दैट एक्चुअली डिवाइड इनटू द फाइन आर्टरीज दैट इज कॉल्ड एज द that is the afferent arterioles. This afferent arteriole when enter inside the kidney, it divided into a bunch of capillaries. ये bunch of capillaries जो है वो बना देगी, ये bunch of capillary बना देगी. तो टेक्निकली जो मेजर फिल्ट्रेशन होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी बाउमन कैप्सूल में. दिस बाउमन कैप्सूल एक्चुअली इट इज सपोर्टेड बाय दिस देयर आर सर्टेन स्मॉल पोर्स आर देयर. इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं विच आर कॉल्ड एज दी स्लिट पोर. जैसे आपने देखा होगा आटा आप छानते हो छन्नी होती है, लाइक दैट. तो स्मॉल पोर्स आर देयर. सो ब्लड when enter into the afferent arterioles, afferent arterioles is very fine, क्योंकि इसके अंदर क्या आपकी ये कैपिलरी का एक बंच है दैट इज़ वेरी फाइन. तो मोस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल दैट इज एक्सक्रीटेड बाय दीज कैपिलरीज इनटू द बाउमन कैप्सूल, एंड दी स्लिट पोर विल एक्ट एज ए चैनल जहाँ से ये वेस्ट मटेरियल जो है आपका पास ऑन करेगा. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड एज द बाउमन कैप्सूल. तो ये क्या है आपका बेटा, क्या है बोले जरा, बाउमन कैप्सूल. तो दिस इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर. नाउ अगर मैं बात करूँ बाउमन कैप्सूल की बात हमने की यहाँ पे. नाउ जो सेकेंड पार्ट अगर आप देखें इसको, मैं यहाँ पे अगर आप देखें दिस वन सेकेंड पार्ट, दैट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. तो ये वाली जो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटी सी एक बेंडिंग ट्यूब, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. दिस इज द सेकेंड पार्ट. दिस इज कॉल्ड एज द proximal convoluted tubule. So what the waste material that is filtered in the Bowman capsule, actually it pass into a tube that is called as the proximal convoluted tubes. So my dear student, what is the role here, how this proximal convoluted tubule वर्क, क्या ये सिर्फ एक पैसेज का काम कर रही है, और इट इज़ हैविंग अ रोल इन द यूरिन फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट बेसिकली. ओके लेट मी टेल यू. देखिए, so this is called as the proximal tubule. So my dear student, actually what happened when this filtration occur, when this filtrate that comes out from the Bowman capsule, ये जो filtrate जब इस Bowman capsule में आएगा,
सो एक्चुअली इस फिल्ट्रेशन के अंदर जो बाउमन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हुआ, आप देखो, अब मैं एक तरह से कहता हूँ कि अगर जैसे अगर आप घरों में जो आटा छानते हैं उसके छेद थोड़े से बड़े हैं तो क्या होगा, ठीक है, आपका जो वेस्ट मटेरियल तो निकलेगा निकलेगा, साथ में क्या होगा, कुछ मात्रा में आपका आटा भी जो है वो नीचे चला जाता है। तो सिमिलरली इन दिस केस ये जो बाउमन कैप्सूल है, जब इसमें से फिल्ट्रेशन हो रही है, इसमें जो पोर्स में से जो मटेरियल आता है, तो देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट मटेरियल, जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कुछ विटामिन की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, ये विटामिन और ग्लूकोज दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। लेकिन होता क्या है, वाटर के साथ साथ में ये जो विटामिन या ग्लूकोज है या कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, वो भी क्या होते हैं यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं। अब बिकॉज ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, विटामिन आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, शुगर इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, सो व्हाट इज द रोल ऑफ पीसीटी? एक्चुअली पीसीटी क्या करता है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट मटेरियल जो कि गलती से नहीं बोलेंगे, सिस्टम है ये एक, यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाता है, जैसे वाइटामिन आ गया आपका, ग्लूकोज आ गया आपका, तो ये सेंड बैक टू द, तो यहाँ से क्या होता है, ये बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से आपका जो ग्लूकोज है, आपका जो वाइटामिन है या एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, ठीक है, ये यहाँ से ये क्या दे एक्सक्रीट आउटसाइड, ये यहाँ से एक्सक्रीट कर देता है, मतलब इस ट्यूब में से बाहर निकल आता है। जब ये बाहर निकल आता है तो डेफिनेटली बाहर, क्योंकि ब्लड वेसल्स आर देयर, ब्लड कैपिलरीज आर देयर, तो ब्लड कैपिलरी फिर से उसे बॉडी के अंदर ले लेती है, ब्लड में ले लेती है, ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकेंड, इस पीसीटी का एक और रोल होता है डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे कुछ वेस्ट मटेरियल एडेड भी होते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे बाउमन कैप्सूल में जब फिल्ट्रेशन हुई, एट दैट पॉइंट व्हाट हैपेंड बेसिकली, आपने देखा होगा कि जैसे समटाइम्स व्हेन यू टेक सम सॉर्ट ऑफ ड्रग्स, किसी तरह के आप ड्रग्स लेते हो या दवाई लेते हो, कोई बीमारी होती है, तो आपका जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो जो भी ये ड्रग्स हैं, इनके फ्लेवर्स हैं बेसिकली, दे आर ऑल्सो एडेड, बट ये फ्लेवर जो होते हैं पूरी तरह से बाउमन कैप्सूल से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। सो व्हाट हैपन पीसीटी में, एट द पॉइंट ऑफ पीसीटी एज द कैपेबिलिटी, पीसीटी क्या करता है, बाहर से इन ब्लड्स, इन जो ये आपके फ्लेवर्स हैं, इनको एब्जॉर्ब करे यहाँ पे, नंबर वन। नंबर टू, यूरिया, यूरिया की जो एडिशन होगी, जो यूरिया एक्चुअली होता क्या है ना, अगर आप देखें ये जो अफरंट आर्टीरियोल्स है, जो ये बंच ऑफ कैपिलरीज है, यहाँ से जो फिल्ट्रेशन होती है तो यूरिया की मात्रा भी रहती है, पर जो फिल्ट्रेशन होती है वो कम होती है, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ मटीरियल इनसाइड द ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी फिल्टर हुआ, पानी भी निकला, विटामिन भी निकले, तो इसकी एक लिमिटेड अमाउंट जो था वो यहाँ पे फिल्टर होता है। एंड एक्चुअली क्या होता है, जब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मटेरियल फिल्टर हो जाता है, तो जब ये जो इफरेंट आर्टेरियोल बाहर निकलती है बाउमन कैप्सूल से, इट आल्सो क्रिएट सर्टन मटेरियल, सर्टन केमिकल, लाइक अगर हम बात करें, मैंने पहले कहा ड्रग्स के जो फ्लेवर्स हैं वो ये एक्सक्रीट करेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यूरिया की बात करूँ, तो यूरिया यहाँ पे एक्सक्रीट होगा, तो जब ये यूरिया एक्सक्रीट होगा इस बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, दैट इज एब्जॉर्ब बाय द पीसीटी। तो मेरी बात आप समझ ही गए होंगे, अगर मैं इसको मोटे तौर पे कहूँ तो पीसीटी का काम क्या है, रिमूवल ऑफ द पीसीटी। एक्सक्रीट क्या करेगा, मैंने ये पीसीटी बाहर क्या फेंकेगा, यहाँ से एक्सक्रीट करेगा, ये एक्सक्रीट करेगा इंपॉर्टेंट मटेरियल, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज विटामिन, सम ऑफ द साल्ट्स, एंड जो बाहर ये निकालेगा जो मटेरियल, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल, दैट इज गोज टू द ब्लड, ये कहाँ चला जाता है, ये आपके ब्लड में चला जाता है। सिमिलरली जो ये इफरेंट आर्टेरियोल है, ये कुछ अलग मात्रा में भी कुछ वेस्ट मटेरियल को निकालती है, लाइक मोर यूरिया, फ्लेवर्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स, तो दे आर एडेड इनटू द पीसीटी। तो पीसीटी का काम क्या होता है, ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको एब्जॉर्व करेगा, लाइक यूरिया, लाइक दिस ड्रग्स फ्लेवर्स, एंड इट विल give back to the blood glucose and vitamins. So this is the second part. So if you just see here, मैंने देखा पहले देखा हमने, that is the first part, that is the Bowman capsule. This is the second part, that is the proximal convoluted tubules. And now the third part. अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करें, अगर आप देखें यहाँ पे एक यू शेप की एक ट्यूब आपको दिखाई देगी, दिस यू शेप ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड एज दी लूप ऑफ फेनल। तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज दी लूप ऑफ फेनल। तो ये फाइन कलर की जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, अगर आप देखें ये जो, अगर ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये बेसिकली यू शेप है ना, दिस इज कॉल्ड एज दी लूप ऑफ फेनल। नाउ द वेस्ट, जो भी आपका वेस्ट होगा फ्रॉम बाउमन कैप्सूल, इट विल गो टू द पीसीटी, एंड फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इस लूप ऑफ फेनल में जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, लूप ऑफ फेनल की बात करें तो लूप ऑफ फेनल इज ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट रोल। तो इसका जो मेजर रोल आता है वो वाटर की रेगुलेशन में आता है, वाटर को रेगुलेट करने में इसका रोल आता है।
कि कितनी मात्रा में वाटर जो है, क्योंकि देखो अगर यूरिन की भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो हम पानी पीते हैं उसमें से भी कुछ क्वांटिटी में वाटर जो बाहर निकलता है, सारा पानी बाहर नहीं निकलता, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर बैलेंसिंग होती है, मतलब वाटर कितना बॉडी में पाइप में चाहिए, नेफ्रॉन में रहना चाहिए या हम यूरिन में रहना चाहिए, और कितना नहीं रहना। अगर मान लो ज़्यादा पानी है इसके अंदर वासा लूप ऑफ फैनल में, तो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग लिम्ब जो होगी वो पानी को क्या करेगी, बाहर एक्सक्रीट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर की एक्सक्रीशन होती है, वाटर की एक्सक्रीशन होती है। और ये जो असेंडिंग लिम्ब आप देखिए, ये ऊपर वाली जो लिम्ब है, इट विल रेगुलेट द सॉल्ट, ये NaCl सॉल्ट को क्या करेगी, या सोडियम आयन या क्लोराइड आयन को क्या करेगी, वो एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है, फर्दर जो बाद में वाटर की रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर मैं एक पॉइंट में कहूँ, एक सिंपल से पॉइंट में ओवरऑल फंक्शन की बात करूँ इस लूप ऑफ फैनल की, तो ये लूप ऑफ फैनल का जो मेन काम आ गया वो क्या आ गया, वाटर की रेगुलेशन, पानी की रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दी, देखिए मैंने पहला पार्ट क्या बोला, बाउमैन कैप्सूल, सेकंड पार्ट क्या बोले जरा, यस PCT, थर्ड पार्ट क्या आ गया आपका, लूप ऑफ फैनल। द डियर स्टूडेंट अगर आप ये देखें यहाँ पे, ये दिस इज द फोर्थ वन, ये फोर्थ पार्ट। एक अगली ट्यूब है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज दी DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, दिस वन, ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज दी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहाँ पे है, ये आपकी यहाँ पे लूप ऑफ फैनल खत्म हुई, तो लूप ऑफ फैनल के बाद में यहाँ पे ये ट्यूब है, आप देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ इमेज डायग्राम, तो ये देखिए दिस इज दी फोर्थ वन, दैट इज द DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड माय डियर स्टूडेंट, इसका जो मेजर रोल होता है, देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और द आयंस, सॉल्ट्स, ठीक है, जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया आपके, या दूसरे आयन हो गए, प्रोटीन आयन्स हो गए। सो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली होता क्या है, ये जो DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की मैं बात करूँ, इट इज़ हैविंग ए ग्रेट रोल इन दी रेगुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड के अंदर एक उचित मात्रा में आपके जो सॉल्ट्स है वो रहने चाहिए, ठीक है। क्यों रहने चाहिए भाई, क्योंकि बॉडी में जहाँ पे भी जहाँ जहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देर इज़ ए रोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, सॉल्ट जिस तरफ ज़्यादा होता है वो क्या करता है, वाटर को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। आपका जो डाइजेशन हो रहा है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटेस्टाइन में, दैट इज़ बाय द ब्लड। और ब्लड क्यों करेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सुटेबल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ब्लड में कितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ठीक है। और यूरिन में अगर ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा है, देन इट विल बी गिवन टू दी DCT। DCT क्या करेगी, ब्लड में से अब्जॉर्व कर लेगी। एंड अगर ब्लड में आपके दिस इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा, सॉल्ट्स की मात्रा जो वो कम है, तो DCT क्या करेगी, यहाँ से एक्सक्रीट करेगी, सो दैट ब्लड वेसल कैन एब्जॉर्ब दैट सॉल्ट। तो यहाँ पे रेगुलेशन हो रही है, यहाँ पे रेगुलेशन हो रही है किसकी, सॉल्ट की रेगुलेशन हो रही है। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट। तो पहला पार्ट पढ़ा हमने बाउमैन कैप्सूल, सेकंड पार्ट पढ़ा हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, थर्ड पार्ट पढ़ा हमने लूप ऑफ फैनल, फोर्थ पार्ट पढ़ा हमने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो जो लास्ट पार्ट आप ये जो देख रहे हो, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कलेक्टिंग डक्ट, अगर मैं बात करूँ, कलेक्टिंग एज द नेम इंडिकेट, कलेक्ट, ये क्या करता है, जो भी वेस्ट, जो भी मटेरियल यहाँ तक आया है DCT, रेस्ट ऑफ द जो फिल्ट्रेट है, इट विल गो टू द कलेक्टिंग डक्ट डियर स्टूडेंट। और ये कलेक्टिंग डक्ट इट लीव टू द पेल्विस ऑफ द किडनी, ये किडनी के अंदर जो पेल्विस रीजन है, ये जितना भी वेस्ट है पेल्विस रीजन में डाल देगा, दैट इज नोन एज द रेनिल पेल्विस। और फ्रॉम रेनल पेल्विस इट विल गो टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेटर, यूरेटर के रास्ते से ये यूरिनरी ब्लड में यूरिन जो होगा वो रेडी होगा। लेकिन क्या कलेक्टिंग डक्ट का काम सिर्फ इतना ही है कि इट विल कलेक्ट द वेस्ट from the DCT? No dear student, this collecting duct is having another role in case of the osmoregulation of the water, पानी को। अगर सपोज मैंने कहा वाटर को रेगुलेट करने का काम क्या है, लूप ऑफ फैनल का भी है, वाटर को रेगुलेट करने का काम जो है वो कलेक्टिंग डक्ट का भी है। तो एक हार्मोन है बेसिकली दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम योर ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड विल प्रोड्यूस ए हार्मोन दैट इज नोन एज द ADH हार्मोन, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन। दैट एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है दैट विल वर्क ओवर द कलेक्टिंग डक्ट। देखो अगर मान लो ब्लड के अंदर जो है अब पानी की मात्रा सफिशिएंट है, इन दैट केस दिस दैट ADH हार्मोन जो है दैट विल नॉट रिलीज। जब ADH नहीं निकलेगा तो कलेक्टिंग डक्ट जो होंगी दे विल रिमेन इम्परमिएबल, ये इम्परमिएबल देंगी, मतलब पानी को न अंदर आने देंगी ना बाहर जाने देगी। बट व्हेन देयर अकर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन योर ब्लड, दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इट विल प्रोड्यूस, ये पैदा करेगी ADH हार्मोन।
and that ADH hormone, it will change the permeability of the collecting duct. Now this collecting duct will be become permeable to the water. So the water, क्योंकि बाहर पानी की मात्रा कम है, अंदर पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी, तो ये जो पानी है ये कहाँ पे, ये कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो वाटर की जो ऑस्मो रेगुलेशन में किसका रोल आ जाता है, अगर हम कहें वन इज़ द लूप ऑफ फैनल, वन इज़ द कलेक्टिंग डक्ट। तो सॉल्ट के लिए मेनली जो आता है हमारे पास ये DCT जो है, दैट प्लेज ए ग्रेट रोल। यहाँ पे DCT का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो मेडुलरी रीजन है, ये जो मेडुलरी रीजन है, यहाँ पे नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर, ठीक है। तो ये जो मेडुलरी रीजन है नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेट को किस में डाल देते हैं, रीनल पेल्विस में, एंड दिस रीनल पेल्विस ये एरिया आ गया आपका, सारा जितने भी नेफ्रॉन है दे विल ऐड दिस वेस्ट इनटू द रीनल पेल्विस। फ्रॉम रीनल पेल्विस आपके ये यूरेटर बाहर आ रहा है, यूरेटर जो है दैट यूरिन को कैरी आउट करेगा अप टू दी यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर तक इस चीज़ को क्या करेगा, कैरी करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, वेदर प्लांट आल्सो एक्सक्रीट, यस दैट्स राइट, प्लांट आल्सो एक्सक्रीट, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो होता है बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल की अगर मैं बात करूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट, डियर स्टूडेंट। तो अगर आप देखें यहाँ पे प्लांट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल की मैं बात अगर करूँ, तो प्लांट में गैसियस वेस्ट जो सबसे बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, हम लोग भी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या पैदा करता है, ये ऑक्सीजन। तो अगर मैं बोलूँ क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बोथ आर वेस्ट, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि रेस्पिरेशन जब रेट ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, दिन को जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो दैट इज रिमूव फ्रॉम द स्टोमेटा, ठीक है। सिमिलरली देयर इज अनदर वेस्ट इन केस ऑफ प्लांट, बेसिकली दैट इज द वाटर। अगर आपने देखा होगा एक प्रोसेस को दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, यस, अगर मैं ट्रांसपिरेशन की बात करूं, ट्रांसपिरेशन क्या है, रिमूवल ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा बार। देखिए होता क्या है, रूट कंटिन्यूसली ज़मीन में से वाटर को क्या करती है, सक करती है। ये मैं एक और वीडियो इसके बाद बनाऊंगा ट्रांसपिरेशन पे, ठीक है। तो ये क्या करती है, सक करती है, पानी को कंटिन्यूसली लेती रहती है। अब देखो फॉर एग्जांपल, भाई हम लोग पानी पीते हैं, कंटिन्यूसली पानी पीते रहे पीते रहे पीते रहे, तो होता क्या है, पानी अगर पेट तो फट जाएगा, अगर पानी बॉडी के अंदर रहेगा तो होता क्या है, हम उसको बाहर निकाल देते हैं, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। So similarly, when this plant it absorbs water from the soil continuously, what will happen? Why it absorbs the water? You know that lot of mineral it plant get from the soil. So there is a need of continuous absorption of the water from the soil. So when it will absorb the water from the soil, what will happen? There may occur increase in the turgor pressure. There may occur increase the water pressure inside the cells, and cell may burst. But ऐसा होता नहीं है। Why? Because in case of the plant there are tiny opening that is called as the stomata. वो जो stomata होते हैं वहाँ से when sunlight is fall over the leaves, what happens, stomata open and the water, extra water, excessive water, that evaporate, वहाँ से evaporate हो जाता है, that is called as the transpiration. A similar type of mechanism that is you can see in case of the plant, आपने देखा होगा dew drops, जब आप रात को सोते हो सुबह उठते हो तो आपको क्या पानी की बूंदें जो हैं कुछ दिखाई देती हैं लीव्स पे। तो डियर स्टूडेंट एक्चुअली क्या होता है, रात को भी देखो स्टोमेटा दिन को खुलते, दिन को तो वेपोरेशन होगी, लेकिन रात होती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, बट द वाटर एब्जॉर्प्शन दैट रन कंटिन्यूसली, इट कंटिन्यूसली द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द नाइट टाइम ऑल्सो, ठीक है। लेकिन नाइट को क्या है, स्टोमेटा बंद है, तो एट दिस केस व्हाट हैपन, जब रात को जो पानी खींचा जाता है तो यहाँ पे पानी बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है, माने स्टोमेटाज आर क्लोज, रात को स्टोमेटा बंद है, तो ये पानी कहाँ से निकलता है। एक्चुअली व्हेन द वाटर प्रेशर इंक्रीजेस तो लीव्स की जो टिप पे जो सबसे फाइन कमज़ोर पोर्शन होगा दैट बिकम ब्रस्ट, जो जाइलम टिश्यू जहाँ पे लीफ के टिप पे जहाँ पे बिल्कुल वीक टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो जाइलम जो होगा वो जो जाइलम टिश्यू वो ब्रस्ट हो जाएगा और वहाँ से पानी बाहर निकल आता है इन द फॉर्म ऑफ द ड्यू ड्रॉप, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गटेशन। आप लिख सकते हैं गटेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द गटेशन। सो देर आर सर्टन अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो ऑफ द वेस्ट मटेरियल रिमूवल। जैसे आपने देखा होगा जो फ्रूट्स हैं, जो राइपन्ड फ्रूट्स ऑलवेज फॉल डाउन, वाई, बिकॉज दिस इज अ वेस्ट। आपने देखा होगा डेड ब्रांचेस और द डेड लीव्स दैट फॉल डाउन, वाई, दैट इज ए वेस्ट मटेरियल। आपने देखा होगा जो गम्स है, रेजिन्स हैं, ठीक है, दे आर रिमूव्ड बाय द स्टेम और द रूट्स। आपने देखा होगा कई बार स्टेम के ऊपर चिपचिपे से पदार्थ रहते हैं, कई तरह के गम्स रहती है,
So that is not required by the body. They are called as the secondary metabolites. जनरली इन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं कि दैट मे और मे नॉट नीडेड, ठीक है। और विदाउट सेकेंडरी तो जब मे और मे नॉट नीडेड है तो दैट इज some of the secondary metabolites are removed from the body, and that also include excretion in the plants. तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राइट द टाइप ऑफ excretion या excretory material that is produced by the plant itself.